علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ حضرات، میں نے آیت جو پڑھی ہے اگر میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا تو بڑا لمبا معاملہ ہو جائے گا۔ بہرکیف اگر آیا ہو تو تھوڑی دیر مجھے سن لیجئے۔ اور آج میری ٹاپک ہے ایمان۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو ایمان عربی لفظ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ عربی لفظ ہے۔ اور اس کا چلن اتنا ہو گیا کہ آج اس کی روح نکل چکی ہے۔ لفظ ایمان لوگوں نے اس کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ لفظ ایمان جس کو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ بنیا کے دکان پہ چلے جائیں، بنیا کافر ہی کیوں نہ ہو، بنیا مشرک ہی کیوں نہ ہو، بنیا کوئی دجال ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر 1 کلو چینی آپ کو اچھے وزن سے تول کر دے دیتا ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں بڑا ایماندار۔ اگر کوٹے دار نے 4 کلو کے بجائے 5 کلو غلہ دے دیا تو آپ گھومتے پھرتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں بھائیو ہمارے یہاں کا کوٹے دار بڑا ایماندار ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے 5 کلو چاول 5 کلو گیہوں نیٹ وزن کر کے اچھے سے دیا ہے۔ پتا چلا 1 لیٹر آپ کو پیٹرول پمپ پر اگر پیٹرول اچھا مل جائے تو آپ اس کو ایماندار کہتے ہیں۔ بنیا اگر چینی اچھا دے دے تو آپ ایماندار اس کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ لفظ ایمان جس کو چاہتے ہیں اس کو بول دیتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں اس پر فٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے پوچھا یہ لفظ ایمان کہتے لفظ ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں سنو میری بات کو۔ لفظ ایمان تو سنو مسلمانوں، ایمان نہ بنیا کا 1 کلو چینی دینا ایمان اس کی دلیل ہے، نہ کوٹے دار کا 5 کلو غلہ صحیح دینا ایمان کی دلیل ہے۔ نہیں، اگر ایمان صحیح تولنے کا نام نہیں ہے، ایمان کسی بنیا کا صحیح ناپ تول نہیں ہے، بلکہ ایمان کہتے ہیں اللہ و رسول کے مان لینے کا۔ لفظ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، لفظ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، لفظ ایمان کا مطلب ہے قبول کر لینا، لفظ ایمان کا مطلب ہے تسلیم کر لینا۔ اور کیسے تسلیم کیا جائے؟ آؤ میں ایک آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ حضرات، یہ آپ کے سامنے لائٹ جل رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا برکھے کے عالم میں جب جون جولائی کا موسم ہوتا ہے اور جون جولائی کے موسم میں بارش ہو جاتی ہے، آپ کے گھر پہ چراغ جلایا جاتا ہے، گھر کا بلب آن کیا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس لائٹ اور اس شمع کے چاروں طرف، اس بلب کے چاروں طرف، اس ٹیوب لائٹ کے چاروں طرف، اس چراغ کے چاروں طرف، اس سراج کے چاروں طرف چند پروانے آ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا پتنگے اڑ اڑ کر کے اور اس کا طواف کرتے ہیں اور اس شمع سے ٹکرا ٹکرا کر کے اپنی جان دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی آپ زمین پر پانی ڈالتے ہیں تاکہ جو گرے زمین روز ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ان پتنگوں کو شمع سے الگ کر دے۔ میں نے پوچھا جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو کیا دیکھا؟ تمام پتنگے جو شمع کے پروانے آئے تھے ان کے جنازے شمع کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کے جنازے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے پوچھا اے پروانوں، آخر یہ بتاؤ اتنی طاقت لگانے کے بعد بھی میں نے بہت کوشش کیا لیکن تم پروانے ہو، شمع سے جدا نہیں ہوتے ہو۔ تو پروانے جواب دیں گے نادان، تم مجھے اپنے شمع سے جدا کرنا چاہتے ہو، میں نے اپنے شمع کو مان لیا ہے، ہم پروانے بن چکے ہیں اور ہم نے شمع کو مانا ہے۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن شمع کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ بلا تمثیل مجھے کہہ لینے دیا جائے، ایمان کہتے اسے ہے جو مصطفیٰ کو مان لیتا ہے، زمانہ لاکھ کوشش کرے لیکن وہ مصطفیٰ کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکالتا، بلکہ شان یہ ہوتی ہے قدموں پہ سر رکھ کر قربان تو ہو جاتا ہے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر،
नारे ईमान का तकाजा ये है कि जिस तरह शम्मा को परवानों ने माना है तो सुभान अल्लाह अपनी जिंदगी दे करके ये गवाही दे दिया, लोगों तुम लाख कोशिश करते रहो, बम चलाते रहो, बारूद चलाते रहो, गोलियां चलाते रहो, तोपें चलाते रहो, लेकिन हमने शम्मा को मारा है, हम परवाने बन चुके हैं, हम जान दे देंगे। अरे ये तो चंद मिनट की ट्यूबलाइट पर परवाने जान देते हैं। सुभान अल्लाह, मुख्तारे कायनात को अल्लाह ने सिराज भी बनाया है, अल्लाह ने मुनीर भी बनाया है, अल्लाह ने वशमसी वो दुआ भी फरमाया है। वो कायनात के चांदो सूरज जिनके सदक़े में पैदा किए, जब उनको मान लेता है परवाना तो सिद्दीक से पूछे, ए सिद्दीक तुमने क्या किया? तो सिद्दीक अकबर कहते हैं मैंने कार में सांप के काटने को बर्दाश्त तो कर लिया, लेकिन मुस्तफा को तकलीफ नहीं पहुंची। वाह वाह हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी कुतुबुद्दीन साहब क़िबला, कारी नसीम अख्तर साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। कहाँ के कारी शम्मा को मानने का हजरात ईमान कहते किसे हैं? जब ईमान वाला मान लेता है तो सब कुछ मुस्तफा पे कुर्बान कर देता है। आओ देखो हजरत अबू बकर की शान है। आज अबू बकर की शान में गुस्ताखी करने वाले कुछ मौलवी खड़े हो गए जो अपने आप को मौलाई कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं मैं अली अली करने वाला हूँ। हमने कहा नादान, अली अली करने से नजात नहीं मिलेगी जब तक अबू बकर की मोहब्बत नहीं होगी, जब तक उमर की मोहब्बत नहीं होगी, जब तक उस्मान की मोहब्बत नहीं होगी। कहा ये क्यों कह रहे हो? मैंने कहा नादान, ये वो सरकार के यार है कि सुभान अल्लाह, अगर अबू बकर यार में ने गार में तो मुस्तफा ने यार बनाया मजार में। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, कामयाब गुफ्तगू, सुभान अल्लाह। शायद आपके सर से उतर रही हो बात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यारे गारे मुस्तफा की शान। तवज्जो, बोल लूं, ये फितना बहुत उठा है। ओ सैयद साहब आ रहे, फिलहाल सुन लीजिए। आजकल बड़े साहब मैं सैयद हूं। अरे वाह भाई, सैयदों का तो अदब इस तरीके से है कि कोई सीखना चाहे तो बरेली के हवेली में जाए। हमें यश जिबिद्दी के शोर में तुम्हें सैयदों का अदब क्या बताएंगे? सैयदों का अदब लेना है तो अल्लामा नकी खां के शहजादों से लो, इसलिए कि जमाना किसी का नाम और नसब देखकर सैयद पहचानता है। बरेली के ताजदार तो खुशबू से सैयद पहचान लिया करते। वाह 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 वाह, क्या पहचानते नहीं है, कहते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। हाँ सुनो, मैं बयान क्या करना चाहता था, हजरत ने फरमाया मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। मैंने ईमान के ताल्लुक से, मुसलमानों ईमान, आज देखो मॉब लिंचिंग का जमाना चल रहा है। सुन लो मेरी बात को, हमारे कुछ नौजवान हैं और उनको चंद लोग घेर लेते हैं और घेर लेने के बाद कहते फुला का नारा लगाओ तुमको छोड़ दिया जाएगा, फुला का नारा लगाओ। लेकिन नारा लगाने के बाद भी किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है और अपने मजहब के खिलाफ नारा लगाने के बाद भी कोई जान बचा नहीं पा रहा है। मैं कहता हूं मुसलमानों, ये जान सिर्फ एक मर्तबा जाएगी, मौत तो आनी ही आनी है। मौत से कौन छुटकारा पाया है? अरे यार क्यों अपने ईमान को बर्बाद करते हो? डर और खौफ से किसी दूसरे का नारा लगाते हो। खुदा की कसम, तुम कोई नारा कहे हमारे मजहब का नारा लगाओ तो उससे कह दो किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमें मौत तो आनी है, वो मौत मौत है, वो मौत मेराज है, वो मौत रहमत है, वो मौत गनीमत है जो मुस्तफा की याद में आ जाए, जो मुस्तफा की याद करते आ जाए। हजरत बिलाल हबशी को, हजरत बिलाल हबशी को मारा जा रहा था और उमैया ने कहा था ए बिलाल अब मार खाने के बाद भी आज का नारा छोड़ दे, रसूलुल्लाह का नारा छोड़ दे, मुस्तफा की मोहब्बत दिल से निकाल
डाल दे। वज़नी पत्थर रख दिया गया। हजरत बिलाल अबची के सीने पर जुबान निकल करके बाहर आ गई। फिर आपको मार मार के कहा जा रहा है, ए बिलाल कलमा छोड़ दे, ए बिलाल नबी का दामन छोड़ दे। तो बिलाल अबची ने कहा था, नादान, तू जान की धमकी देता है। अफसोस तो ये है कि एक जान है, अगर अल्लाह हजारों जान देता तो जान देकर मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ सकता, उनके कदमों पे कुर्बान कर देता। अरे साहबा की शान थे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है, निकल जाए दम उनके कदमों के। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। हाँ, सुभान अल्लाह। आजकल ईमान वाले देखो, इनका ईमान डगमग हो जाता है। 4 सोटा देखी नहीं, मामला बदल गया। 4 सोटा देखी ने 4 तरफ से आ गए, घेर लिया। मैं कहता वो जो मरे बुझती रहो, मरना तो वही है, कोई मरना नहीं है। कोई अपनी चारपाई पे मर रहा है, कोई ट्रक से मर रहा है, अभी कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है और टक्कर लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कोई बिस्तर पे मर रहा है, कोई तख्त पे मर रहा है, कोई तख्ते पे मर रहा है। मर तो सब रहे, लेकिन हमने पूछा तख्त पर मरने वालों तुम्हें कुछ मिला? कहे नहीं नहीं, फरिश्तों की सख्ती मिली, ये अज़ाब मिला। हमने कहा वाह, बोरिया नशीनों से पूछो, तुम्हें इंतकाल हुआ, तुम मरे तो तुमको क्या मिला? तो अल्लाह वाले जवाब देंगे, हम नबी का नगमा गाते मरे तो जमीन पे मातम हो रहा है और अर्श के फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। जमीन वाले मातम कर रहे हैं, जमीन रो रही है। हमने पूछा जमीन क्यों रो रही है? तो जमीन इसलिए रो रही कि आज सज्जा करने वाला चला गया, आज अल्लाह का जिक्र करने वाला चला गया, आज नेकियां करने वाला चला गया, आज कुरान पढ़ने वाला चला गया, आज नबी पर जान निछावर करने वाला चला गया, आज नामूसे रिसालत की हिफाजत करने वाला चला गया। और हमने पूछा है आसमान वालों, तुम क्यों खुशी मना रहे हो? तो आसमान के फरिश्ते जवाब देंगे, आज अल्लाह का नेक बंदा हमारे दरमियान आ जाए, इसलिए हम खुशियां। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, वाह बेशक। तो ईमान बहुत जरूरी है। ये ढुलमुल यकीनी छोड़ो, जरा डंडा देगा बच्चों खाओ तुम तैयार। ये ढुलमुल यकीनी बड़ा अजीब हो गया कि मौलाना साहब क्यों ना दाढ़ी रखेंगे तो लोग पहचान जाएंगे कि ये मोहम्मद अली है। अच्छा, और नहीं रखेंगे तो क्या रामदीन होंगे? सुन, कल तक दाढ़ी से काम चलाया जा रहा था, अब दाढ़ी नहीं देखी जाती, नाम देखा जा रहा है, आधार देखा जा रहा है। अभी मौलाना आदम साहब ने बहुत अच्छी तकरीर करी है, आपको सुनाया है। मैं ईमान की अहमियत बताता हूँ। ईमान कहते किसे? आज हम ईमान वाले, जरा सा मामला होता है तो हमारा ईमान डगमग डगमग हो जाता है। इन औरतों को देखो, इनके ईमान को तो पता ही नहीं चला है कहाँ कहाँ ईमान है। हाँ भी, इनको सिखाया नहीं हमने। हम क्या सिखाते हैं? मिर्चा कम डालना, समझ रहे हैं? हमको आज ये पसंद है, हमको कल वो पसंद है। कभी इनको ये भी बताया कि रसूल कायनात की सुन्नत कौन कौन सी है? बताया? चाय में अगर चीनी ज्यादा हो गई, शुगर के मरीज है तो फौरन डांट के कहते हैं तुम्हें पता नहीं, मार डालना चाहती हो क्या? लेकिन क्या इनको कभी नमाज के लिए आपने डांटा? हमने डांटा? बताओ कोई इतने मर्द हो, अगर मर्द हो बताओ इसमें किसी ने डांटा? डांटा आपने? क्या अपनी बीवी से एक वक्त नाराज हुए कि आज मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा? तुमने ज़ोहर की नमाज कदा की है, लेकिन मियां मिट्टू खुद की गायब है तो दूसरों को क्या समझाओगे? सुभान अल्लाह। जब खुद की गायब है तो क्या समझाओगे इनको? ओ मेरी माँ और बहनों, जिस तरह तुम जिद करती हो कि खाला के यहाँ जाएंगे, नया कपड़ा चाहिए, दादी के, हमारी मौसी के यहाँ ऐसा है, हमारी खाला के यहाँ ऐसा है, हमारे मामू के लड़के की शादी है, नया लिबास लेकर के जाऊंगी, नहीं लाओगे तो तुम्हारा खाना बंद, पानी भी। अगर सामान कह दिया बाजार से लाना है, शाम को नहीं आया तो कहती सुनो शाम का खाना बंद कर दूंगी, दोपहर का खाना बंद कर दूंगी, सुबह का नाश्ता बंद कर दूंगी। मैं कहता हूँ थोड़ा वोल्टेज और बढ़ा लो, थोड़ी ताकत और बढ़ा लो, थोड़ा गुस्सा और पैदा कर लो और कहो ए गुड्डू के पापा
अब्बा अगर तुमने फजर नहीं पढ़ी तो सुबह की चाय बंद कर दूंगी, दोपहर में नमाज नहीं पढ़ी तो दोपहर का खाना बंद कर दूंगी। खुदा की कसम 40 दिन करके देखो, 41 दिन नहीं गुजरेंगे तेरा शौहर नमाजी हो जाएगा। वाह 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 वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत।